Hello students, today's topic is conformational isomerism. Up to now we were talking about configurations and isomerisms. So conformation is basically in the molecules having single bond. Like in alkanes we can see there is only one sigma bonds in the alkanes. The carbon atoms are bonded with single bonds. So in the case of single bonds we can see that the two carbons are free to rotate along with this axis, that means the bond axis. So they are free to rotate with respect to each other. So the different arrangements of atom in the space that results from the rotation of groups, basically about CC bond axis, is called as the conformation, or we can say it as conformational isomers. Like in this molecule you can see the two molecules are there, that means one carbon is in front side and the other carbon is on back side. So these molecules gets rotate with each other, that means this gets rotated in one side and this gets rotated in another side. So they can rotate through any angle and it forms a isomers that is called as conformational isomers. So these conformational isomers can be studied in two projection. That means first is Newman's projection and second one is Seahorse projection. So let us talk about Newman's projection. Newman's projection is the type of projection in which we can take these two bonds along a single axis. That means we are viewing this molecule along the axis. That means one carbon is in front side and one another carbon is in back side. So the carbon which is in front side is denoted by this point and the carbon which is in back side is denoted by this circle. So this is the type of Newman's projection in which these are the bonds, these are the attachments of this first carbon, and this is the attachments which this is the attachment of this second, that means backwards carbon. So we see the carbon one in the front and second in the. Then the second projection is called as Sawhorse formula. In this type of formula we can see one carbon is on my left side and another carbon is on my right side. So I view this besides this axis, besides this bond axis. I'm staying here, I'm standing here, and I'm weighing this molecule that in the way that one carbon is on my left side and another carbon is on the right side, and these are uh, the bonds which are attached to this carbon and these are the bonds which are attached to this carbon. Or so this is called as Sawhorse formula. So we have seen the conformation of ethane. In ethane molecule there are two carbon. Okay, two carbon is there, each carbon is attached with three hydrogens. So this dot represent the front carbon and this circle represent the backwards carbon. Now there are three different positions in this ethane we can see. So this is the first position when all the six hydrogens are visible. Okay, दैट मीन्स यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे, और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो इसके बीच में से निकला है, दैट इज इन सेंटर ऑफ दिस एंड दिस हाइड्रोजन. इन दोनों के सेंटर से ये निकल रहा है. Okay, so this form is called as staggered conformation where all the hydrogens are in 60 degrees to each other. Okay, then the second one is eclipsed form. Eclipsed मतलब छुपा हुआ. Okay, hided. All the three carbons and one carbon and three hydrogens are hided. ये जो हाइड्रोजन है ये इसके पीछे छुपा हुआ है, ये हाइड्रोजन इसके पीछे छुपा हुआ है और ये वाला हाइड्रोजन इसके पीछे छुपा है. तो सारे जो बैकवर्ड हाइड्रोजन है, मतलब जो हाइड्रोजन पीछे वाले कार्बन के साथ अटैच है वो सामने वाले हाइड्रोजन से छुप जाते हैं. ओके, दैट मीन्स दे आर ऑन अ सिंगल लाइन. When they are on single line, we call this structure as a eclipsed form. Okay, this is a eclipsed conformation when the backwards atoms are hidden by the frontwards. Okay,
सामने वाले से छुप जाते हैं बैकवर्ड्स वाले. So this is called as eclipsed conformation, and the position is something between staggered and eclipsed. That means not completely staggered and not completely eclipsed. That is called as skew conformation. Okay, the angle could be between 0 and 60. Anything between 0 and 60, that would be skew conformation. So now अब हम ये नहीं बोल सकते कि ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है ये स्टैगर्ड फॉर्म में रहता है, ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है ये एक्लिप्स्ड फॉर्म में रहता है. ऐसा नहीं होता. इथेन मॉलिक्यूल तीनों भी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. अब तीनों फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करते हैं? कि कंटिन्यूअसली एक कार्बन दूसरे कार्बन के आसपास रोटेट होते रहता है, because there is only single bond, so that is free to rotate. So that is in complete rotation. एक दूसरे के opposite direction में ये rotate होते रहते हैं. ओके, एक कार्बन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये जो पोजीशन है ये चेंज होती जाती है. ओके, नाउ we have seen that staggered conformation is more stable as compared to eclipsed conformation. Why this is so? This is because they have enough space to stay. But in eclipsed form, we can see that two hydrogens are closer to each other. If two hydrogens are closer to each other, both are having same charge. दोनों positive charge है, दोनों same charge है, तो obviously they will repel each other. Because of the same charges, both the hydrogen will repel each other. So that's why this eclipsed form is not very stable. So if it comes rotate होके जब ये eclipsed form में आ जाता है, तो दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को पुल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, तो ये बहुत स्पीड में अपना फॉर्म चेंज कर देता है. जब ये स्टैगर्ड फॉर्म में आता है तो ये आराम से रहता है. ठीक है, दैट मीन्स इट इज अवे from the hydrogens, away from two hydrogen, so it is quite stable. ये stable होता है, so it stays at staggered conformation for a longer time as compared to the eclipsed form. Rotate तो हो रहा है, मतलब सारे फॉर्म बन रहे हैं, बट eclipsed फॉर्म में ये ज्यादा समय के लिए रहता है, और स्टैगर्ड फॉर्म में ये ज्यादा समय के लिए रहता है, और eclipsed फॉर्म में ये कम समय के लिए रहता है. और उसका बीच का जो फॉर्म है, that means transmission from eclipse to staggered and staggered to eclipse, that is a skew conformation. Okay, so if we at a particular moment, suppose we take a molecule, at that time it is more probable that the molecule will be in staggered form as compared to eclipse form. ठीक है, इसकी इस फॉर्म में रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू eclipse form. बट ये कंटिन्यूअस रोटेशन की वजह से धीरे से घूम के यहाँ पे आ जाता है, फिर फास्ट मूव होके यहाँ पे चला जाता है, क्योंकि ये अनस्टेबल पोजीशन हो जाता है. ठीक है, सो दैट इज नाउ also we can see the same molecule is in sawhorse representation. अब हम इसको sawhorse representation में अगर देखते हैं तो you can see ये दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट साइड है और ये हाइड्रोजन अपर साइड है. यहाँ पे ये लोअर साइड है और यहाँ पे ये साइडवेज है. So this is staggered conformation in sawhorse represent, and this is eclipsed conformation in sawhorse. You can see all the hydrogens are on same side. But जब हम ये conformation पढ़ते हैं तो it is more flexible if we see the न्यूमन्स प्रोजेक्शन. न्यूमन्स प्रोजेक्शन में हमको क्लियरली दिखाई देता है कि कौन सा मॉलिक्यूल सामने है, कौन सा कितना डिस्टेंस पे है. ओके, so Newman's projection is more comfortable to study the conformation, but we can study both. Okay, so this is what the conformation of ethane. Then if we see the potential energy diagram, जैसे कि हमने देखा कि staggered form जो है वो stable होता है. When the molecule is in stable form, it has lower energy. कम एनर्जी रहती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तो वो स्टेबल हो जाता है. ठीक है, या वाइस वर्सा यू कैन से व्हेन इट इज स्टेबल इट्स potential energy reduced, and when the molecule is unstable its potential energy is more. Okay, so when the molecule is in eclipsed form, it has highest potential energy, and
it lowers when it comes in staggered form. जब ये रोटेट होके staggered form में आ जाता है तो इसकी जो एनर्जी है वो मिनिमम हो जाती है, और इसके बीच के जो भी फॉर्म है वो सब जो है दैट इज skew conformation. Okay, that means it is between staggered form and eclipsed form. तो हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल तो कंटिन्यूस रोटेट हो रहा है, वो रुक नहीं रहा है, वो कंटिन्यूस रोटेट हो रहा है, बट जब वो एक्लिप्स फॉर्म में है तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, दैट मीन्स इट इज मोस्ट अनस्टेबल. जब ये स्टैगर्ड फॉर्म में जाता है तो दिस इज लोएस्ट एनर्जी. तो ये जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, दिस एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन स्टैगर्ड फॉर्म एंड एक्लिप्स फॉर्म इज 12.5 kilojoules per mole. That means a very big difference between the energy of two. Okay, and this is the skew conformation. So this is potential energy diagram. Now let us see the conformational isomerism in butane. Again in butane you can see one of each hydrogen is replaced by a CH3 group. That means CH3 group of one carbon, एक कार्बन जो है central carbon, we have two central carbon, एक का hydrogen is replaced by CH3 group और another central carbon's hydrogen is also replaced by CH3 group. That means one CH3 group is attached with the backwards carbon and one CH3 group is attached with the front carbon. So now we can see this complete structure is hidden. Okay, that means ये हाइड्रोजन इसके पीछे छुपा हुआ है, ये हाइड्रोजन इसके पीछे छुपा है और ये CH3 जो है ये इसके पीछे छुपा हुआ है. दैट मीन्स ऑल द स्ट्रक्चर, और ये कार्बन ऑब्वियसली फ्रंट कार्बन के ऊपर के पीछे छुपा हुआ है. तो अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो इस फॉर्म में हमको सिर्फ C, दो हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप दिखाई देता है, पीछे का कुछ भी दिखाई नहीं देता बिकॉज दे आर हाइडेड. So this is called as fully eclipsed form. That means this is completely eclipsed. The backward carbon and all the groups attached with this backward carbon are completely eclipsed by the front carbon. तो हम इसको बोलते हैं fully eclipsed. अब ये है फॉर्म नंबर 1. अब मॉलिक्यूल जाता है रोटेशन में, रोटेट होता है, ये जो कार्बन है ये रोटेट हो रहा है, यहाँ पे चले जा रहा है. तो अब ये जब यहाँ पे चले जा रहा है तो हम इसको बोलते हैं गॉच फॉर्म. ओके, so this is not completely eclipsed and not completely staggered forms. This is called as gauge form. That means ये अलग दिखाई दे रहा है, हमको यहाँ CH3 दिखाई दे रहा है, यहाँ CH3 दिखाई दे रहा है और ये सब अलग फॉर्म में है. तो अगर ये दोनों हाइड्रोजन होते तो हम इसको स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं. But now this is CH3 group. This is replaced by CH3 group. So we called it as gauge form. अब ये जो है this is also eclipsed. That means this hydrogen is hided with this CH3. This hydrogen is hided with this hydrogen. This CH3 is trying to hide it with this hydrogen. Hydrogen के पीछे hide करने की कोशिश कर रहा है. But this hydrogen is very small, so it is unable to hide this CH3 group. Okay, so this is eclipsed form, but this is not completely eclipsed. अब ये क्या था जहाँ पे CH3 के पीछे CH3 दिख रहा था, this is fully eclipsed, complete eclipsed है ये. This is eclipsed form but not completely eclipsed. Okay, so this is the third form when again this carbon rotates at this position. जब यहाँ पे position पहुंच जाता है, this is called as NT form. दैट मीन्स दोनों CH3 जो ग्रुप है ये एकदम ऑपोजिट साइड में है. ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड में है तो इनको बहुत सारी जगह मिल रही है, क्योंकि इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन्स है, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन्स है. तो जब दोनों ऑपोजिट फॉर्म में है तो ऑब्वियसली इन दोनों को बहुत सारी आराम से, अब ऑब्वियसली जहाँ भीड़ भाड़ है वहां इंसान बैठने की कोशिश नहीं करता, जहाँ सारी सीट्स खाली है वहां पे चलो आप एक एयरपोर्ट पे जा रहे हो, आपको एक जगह बहुत भीड़ भाड़ दिख रही है, सिर्फ 1-2 सीट्स खाली है और एक जगह पूरा खाली खाली दिख रहा है, तो आप कोशिश करोगे कि मैं खाली जगह में जाके बैठूं. वैसे ही ये भी CH3 जो है ये भी खाली जगह में जाके बैठने की कोशिश करता है. यस बेटा, यू वांट टू से समथिंग? ओके, सो दिस इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म. ये जो एंटी फॉर्म होता है, this is most stable form because they have enough space to
spread their hydrogens. Hydrogens को ये आराम से spread कर सकता है. So this is the most stable form. Again this is eclipse form. Then that means ये कार्बन जो है यहाँ पे आ गया तो ये फिर से eclipse form हो गया. ये कार्बन यहाँ पे आ गया तो ये वापस गॉच फॉर्म में हो जाता है. तो जब ये कंटिन्यूअसली रोटेट होता है दैट मीन्स वी आर इमेजिनिंग वन कार्बन जो बैकवर्ड कार्बन है दैट इज रोटेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रंट कार्बन. फ्रंट कार्बन को हमने स्टेबल रखा है और जो पीछे वाला कार्बन है इसको हम रोटेट कर रहे हैं. ठीक है, तो पहले हमने यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ पे रोटेट 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 किया. इस तरीके से हम इसको 30 डिग्रीज पे हम इसको रोटेट करते जा रहे हैं. ठीक है, सो वी गॉट 6 कन्फर्मेशन. जैसे कि हमने इसमें देखा था इथेन में सिर्फ 3 कन्फर्मेशंस थे, बट ब्यूटेन में देयर आर 6 कन्फर्मेशंस in which there is one fully eclipsed, one anti-form, 2 eclipsed form and 2 gauge form. ठीक है, तो ये इतने 6 कन्फर्मेशंस होते हैं जब ये मॉलिक्यूल रोटेट करता है. अब इसमें जो फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म है दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म. सबसे ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि ये दोनों कार्बन एक ही जगह पे आ गए और इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन्स है, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन्स है. तो इतनी क्राउड हो गया एक ही जगह पे कि सारे एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं. भैया तुम यहाँ से जाओ, ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट है, और सारे एक दूसरे इस सीट के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं. तो ऑब्वियसली दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल कंफर्मेशन. ठीक है, सो फुल्ली एक्लिप्स इज द मोस्ट अनस्टेबल while anti-form is the most stable conformation and all these are in between that. So we can see the energy level diagram. When we see the energy level diagram we can see this is the eclipsed, fully eclipsed form. तो ये जो fully eclipsed form आप देख सकते हैं, the molecule starts, the begins with fully eclipsed form और खत्म भी जाके fully eclipsed पे होता है क्योंकि molecule rotate हो रहा है ना, तो हमने 6 position पे उसको rotate किया, but after this 6 position it comes back to the first position that is fully eclipsed. तो ये जो fully eclipsed है इसमें आप देख सकते हो कि energy level सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा potential energy. That means stability is the least one. Okay, least stability. So this is the least stable molecule having the highest potential energy. Then we see as the molecule rotates with the gauge form, this is the gauge form. ये gauge form में आके ये थोड़ा सा stable हो जाता है क्योंकि CH3 distance पे चले जाते हैं. फिर ये जब eclipsed form में आ जाता है, this is not completely eclipsed. This is partial eclipsed. Okay, so this partial eclipse की इसकी energy जो है ये बढ़ जाती है, but it is still lower than complete eclipsed. जो fully eclipsed है उससे इसकी energy कम है. फिर ये जाता है anti form में. अब ये anti form में हमने देखा कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि CH3 के बीच का जो डिस्टेंस है ये सबसे ज्यादा है. The highest distance between CH3 molecules, 2 CH3 molecules. That's why this form is highest stable form. Okay, this is the highest stable form having the lowest energy. Its potential energy is lowest. Again, this CH3 rotates to this and it forms a eclipsed form. ये फिर से eclipsed form बनाता है with higher energy. इसकी energy बढ़ जाती है but still this energy is also lower than that of fully eclipsed. Fully eclipsed से कम है इसकी energy. ठीक है, ये energy हो गया. फिर ये रोटेशन करता है, ये यहाँ पे आ जाता है, ये फिर से गॉज फॉर्म में आ जाता है, गॉज फॉर्म में आ जाता है तो ये इसकी एनर्जी कम हो जाती है. बट दिस इज ऑल्सो नॉट लेस देन दिस वन. ओके, एंटी फॉर्म सबसे कम एनर्जी, गॉज फॉर्म उससे ज्यादा एनर्जी, फिर एक्लिप्स्ड फॉर्म उससे ज्यादा एनर्जी और फुल्ली एक्लिप्स्ड जो होते हैं उसकी एनर्जी उससे सबसे ज्यादा होती है. ओके, so this is what the energy level diagram or you can say potential energy diagram of इथेन मॉलिक्यूल. ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है इसका हम लोग ब्यूटेन मॉलिक्यूल का ये एनर्जी लेवल डायग्राम है. सो यू हैव टू रिमेम्बर एनर्जी. हमको रिमेम्बर नहीं, एनर्जी हमको नहीं चाहिए कि किसकी कितनी एनर्जी है, बस इतना याद रखना कि हम रोटेट करते जा रहे हैं, किसकी लोएस्ट एनर्जी है, किसकी हाईएस्ट एनर्जी है और किसकी एनर्जी किससे कम है, क्योंकि वी हैव अगेन
probably we will have multiple choice question. अगर situation नॉर्मल नहीं आती है तब तक तो हमारा मल्टीपल चॉइस होगा सेकेंड सेमेस्टर भी, और नहीं तो फिर अगर आपका नॉर्मल एग्जाम होता है तो ये आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेट अस एक्सपेक्ट कि तब तक शायद सिचुएशन चेंज हो जाएगी और आपको शायद नॉर्मल पेपर आएगा, जैसे नॉर्मल यूनिवर्सिटी पेपर होता है उस तरीके का पेपर आएगा। तो आप उसी तरीके से तैयारी करो, आप मल्टीपल चॉइस की तैयारी मत करो, ठीक है। आप कंप्लीट पेपर की तैयारी करो तो आपकी मल्टीपल चॉइस की ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगी, क्योंकि दिस इज नॉट कंफर्म कि आपका सेकेंड सेमेस्टर का पेपर कैसा होगा। एज यू कैन सी द सिचुएशन इज गोइंग बेटर, थोड़ा बेटर हो रहा है सिचुएशन, तो हो सकता है कि कॉलेजेस वगैरह चालू हो जाए। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर तो ऑनलाइन ही होगा, बट सेकेंड सेमेस्टर में भी ऑफलाइन। ओके, सो बेटर यू प्रिपेयर फॉर ऑफलाइन एग्जाम्स। सो ये जो होता है कंफर्मेशन ऑफ आइसोमेरिज्म ऑफ ब्यूटेन, दिस इज कंप्लीट 5 मार्क्स क्वेश्चन। Okay, so you have to remember the conformation, you have to remember the structures, and you have to remember the potential energy diagram. Is it clear to you? Okay, so the next topic is conformational isomerism of cyclohexane. Now we are up to now we are concerning with the कंफर्मेशन ऑफ स्ट्रेट चेन। हम जो चेन जो रहता है उसका कंफर्मेशन देख रहे थे, बट नाउ वी आर सीइंग द कंफर्मेशन ऑफ अ रिंग कंपाउंड। अब एक रिंग कंपाउंड जो साइक्लोहेक्सेन रिंग होता है, इसका कंफर्मेशन कैसे चेंज होता है। दिस इज ऑल्सो इन रोटेटिंग फॉर्म। ये भी जो होता है दे आर वेरी फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल, ये एक दूसरे से रोटेट होता है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि ये जो बॉन्ड्स है ये रोटेट होते हैं, वैसे ही ये स्ट्रक्चर भी रोटेट होता है, और रोटेट होके they form different type of structures. Okay, so this is a structure. Obviously we have 6 carbons in this cyclohexane. Cyclohexane है तो हमारे पास 6 कार्बन है, and each carbon is attached with 2 hydrogens. हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स अटैच है। सो दिस इज साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल। नाउ वी आर कंसर्निंग जस्ट विथ, अभी फिलहाल हम सिर्फ कार्बन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर नहीं देख रहे। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल सिर्फ अगर हम कार्बन का स्ट्रक्चर देखते हैं, दैट मीन्स अगर स्केलेटन देखते हैं, skeleton of this molecule we have 6 carbons attached, ठीक है। तो अगर ये कार्बन इस फॉर्म में होता है, दैट मीन्स दिस इज 4 इन स्क्वायर फॉर्म, ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है अगर आप देख रहे हो, और ये जो एक कार्बन है ये इस प्लेन के अपर साइड में जा रहा है और ये इस प्लेन के लोअर साइड में जा रहा है। तो अगर आप इसको साइड से देखते हैं तो इट फॉर्म्स लाइक अ चेयर, ये एक चेयर के जैसा बना रहा है ना, जिसमें ये इसके लेग्स है और ये जो है ये अपर साइड है। तो अगर आप चेयर पे बैठेंगे तो आप इस तरीके से पोस्चर आपका आ जाएगा। आप एक आराम से चेयर पे बैठो, आपका पोस्चर इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं चेयर फॉर्म। सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल क्यों होता है वो हम आगे जाएंगे तो देखेंगे, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर स्टेबल तब होता है जब उसमें जो भी अटैचमेंट्स है वो एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूरी पे होते हैं, ठीक है। जो सबसे ज्यादा दूर पे है तो ही वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। अगर उसके कार्बन्स और हाइड्रोजन्स पास में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली वो जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल नहीं रह जाता। ओके, इज इट क्लियर? सो इन दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी दिस कार्बन आर एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है ये, तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। अब ये स्ट्रक्चर जो होता है ये रोटेट होता है, दैट मीन्स अब ये जो कार्बन है ये कार्बन यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये 5th वाला जो कार्बन है ये मूव होके यहाँ पे आ गया। तो ये स्ट्रक्चर बाकी का आप देखेंगे बाकी सबका पोजीशन सेम है, ठीक है। बाकी सबका पोजीशन सेम है, सिर्फ ये जो 5th वाला कार्बन है ये मूव होके यहाँ पे आ जाता है। तो ये जो है ये हाफ चेयर बन जाता है। दिस इज नॉट कंप्लीट चेयर, दिस इज अ हाफ चेयर कॉन्फर्मेशन। ओके, देन इसके बाद क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे आ रहा है
तो समटाइम्स इट गेट्स ट्विस्टेड, दैट मीन्स ये जो थर्ड वाला है, ये थर्ड वाला यहाँ पे चला जाता है। अब थर्ड वाला यहाँ पे चले जाएगा तो ये ट्विस्ट हो जाएगा, तो ये इस तरीके का ट्विस्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये जो फॉर्म है दिस इज अ ट्विस्ट फॉर्म। अब ऑब्वियसली ये जो है ये थोड़ा सा एक दूसरे के पास में है, ये भी पास में आ गया और ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स है ये भी पास में आ गए, तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी कम हो जाता है। ठीक है, इसका स्टेबिलिटी कम है क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे के पास में आ गए, तो इसका स्टेबिलिटी कम है। तो दिस इज अ ट्विस्ट बोट, इसको हम ट्विस्ट बोट बोलते हैं, एंड दिस इज अ बोट फॉर्म। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इट लुक्स लाइक अ बोट। ठीक है, ये एक बोट के जैसा दिख रहा है। तो दिस इज क्वाइट स्टेबल फॉर्म, मोर स्टेबल देन हाफ चेयर एंड ट्विस्ट फॉर्म, बट लेस स्टेबल देन दैट ऑफ चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म से कम स्टेबल है क्योंकि ऑब्वियसली ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है ये पास में आ गए, पास में आ गए तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये इस तरीके से इसके हाइड्रोजन अटैच है, तो ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये एक दूसरे के पास आ गए तो ये रिपल्शन करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ऑब्वियसली दिस स्ट्रक्चर इज लेस स्टेबल देन दैट ऑफ चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म जो है उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि सबका जो डिस्टेंस है, अगर आप सारे कार्बन का और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है इसका आप डिस्टेंस देखेंगे तो ये हाइड्रोजन का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये इनका डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, इसलिए चेयर फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म एंड बोट फॉर्म इज द इंटरमीडिएट, और जो हाफ चेयर और ट्विस्ट फॉर्म है ये सबसे कम स्टेबल होता है। ओके, so let us see the energy level diagram of this one. So as we begin with the chair form का एनर्जी सबसे कम होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल मतलब सबसे कम एनर्जी, उसका पोटेंशियल एनर्जी इज द लोएस्ट वन। देन इट चेंजेस टू हाफ चेयर, हाफ चेयर का एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद जो ट्विस्ट फॉर्म आ जाता है, ट्विस्ट फॉर्म में भी एनर्जी थोड़ा सा कम हो जाता है। देन इट कम्स टू बोट फॉर्म, बोट फॉर्म में आ जाता है, द एनर्जी इज इन बिटवीन, इंटरमीडिएट एनर्जी है। फिर ट्विस्ट फॉर्म में आ गया तो एनर्जी इज लोअर वन, देन हाफ चेयर का एनर्जी फिर ज्यादा हो जाता है क्योंकि दिस इज द डिस्टॉर्टेड फॉर्म। अब ये डिस्टॉर्टेड फॉर्म है इसलिए इसका एनर्जी हाईएस्ट होता है, दैट मीन्स दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर। उसके बाद अगेन दिस कम्स बैक टू इट्स चेयर फॉर्म, दैट मीन्स अगर हम देखते हैं तो ये मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली मोशन में है, कंटिन्यूअसली अपना जो कंफर्मेशन है ये चेंज कर रहा है, बट स्टेबल कंफर्मेशन इज चेयर फॉर्म, तो ऑब्वियसली ये चेयर फॉर्म में ज्यादा देर रुकेगा, ज्यादा जो है मोस्ट प्रोबेबल ये चेयर फॉर्म में रहने की कोशिश करेगा। हाफ चेयर इज द लीस्ट टाइम, इसका जो है सबसे कम एनर्जी है तो कम इसका सबसे कम स्टेबिलिटी है हाफ चेयर का, तो ये बहुत अनस्टेबल है तो कम से कम समय ये इस टाइम पे रहेगा। फिर ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है ट्विस्ट फॉर्म, ट्विस्ट बोट में थोड़ी देर रहेगा, फिर बोट फॉर्म में, जैसे बोट फॉर्म में गया दिस इज अगेन वंस वेरी अनस्टेबल, तो फिर ये फिर फटाक से ट्विस्ट फॉर्म में चला जाएगा, फिर हाफ चेयर में जाएगा क्योंकि दिस इज इन कंटिन्यूअस रोटेशन, हाफ चेयर में जाएगा तो ये फिर से बिल्कुल अनस्टेबल है, विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इट कम्स बैक टू इट्स चेयर फॉर्म। ओके, तो इस तरीके से ये जो मॉलिक्यूल होता है ये रोटेट होते रहता है, अपना फॉर्म चेंज होते रहता है और ये अलग अलग कंफर्मेशन में जाता है। सो डिफरेंट कंफर्मेशंस आर देयर इन दिस। अब इसमें भी हम देखेंगे कि सारे जो कार्बन है ये सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर ये डबल बॉन्ड आ जाता है तो इसका रोटेशन ब्लॉक हो जाता है, रोटेशन हो नहीं पाता क्योंकि ऑब्वियसली दो लकड़ियों से एक साथ अटैच है दो चीजें, तो वो रोटेट नहीं होंगी, क्योंकि अगर रोटेट होंगी तो वो चीजें जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, बट अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो इजीली विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर दे कैन रोटेट when there is single bond. So we can see this is singly bonded. We are seeing cyclohexane, cyclohexane में सारे कार्बन्स में single bond होता है, इसलिए वो with respect to each other they keeps on rotating, they keeps on changing their forms. Okay, so these are the forms which are observed in this change in conformation.
अब इसको में भी हम एक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं इन बोथ कंफर्मेशन। अब आप ये एक बार रीड करके देखो, दिस इज सेम व्हाट आई हैव टोल्ड यू। ओके, then let us talk about the hydrogens which are attached with these 6 कार्बन्स। अब ये जो कार्बन्स है इसमें हर एक के साथ 2 हाइड्रोजन्स अटैच है। ईच ऑफ द कार्बन आर हैविंग 2 हाइड्रोजन अटैच विद दिस। So if I am taking this chair form, okay, I am considering this chair form, then I can see there are 6 carbons we can see, each carbon with 2 hydrogen। अब हमने एक एक्सेस लिया, बीच में एक सेंटर में एक्सेस लिया, and we divide this molecule with this axis। अगर हम ये सेंट्रल एक्सिस लेते हैं तो ये सेंट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो ये जो हाइड्रोजन है, ये सब में एक एक जो हाइड्रोजन है, दे आर ऑन एक्सियल पोजीशन, दैट मींस दे आर पैरेलल टू दैट ऑफ एक्सिस। You can see this hydrogen is parallel to this axis, this hydrogen is parallel to this axis, this hydrogen is parallel to this axis, again this hydrogen is again parallel to axis। उस साइड में है तो 3 डायमेंशन में दिख रहा है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, बट दिस इज पैरेलल टू दिस एक्सिस। ये भी जो एक्सियल पोजीशन है ये भी पैरेलल है इससे, ठीक है। तो जितने भी एक्सियल पोजीशन है, दैट मींस ए डिनोट्स द एक्सियल पोजीशन, so this is along with the axis, all these are along with this axis। and if we see He, this He are equatorial position, equatorial position is the hydrogen which is in 109.28 degrees to that of axial hydrogen। ये जो axial hydrogen होता है इसे 109.28 degrees पे होता है ये, okay, and this is not parallel to this axis, or you can see this is almost partially perpendicular to this axis, okay, so this is called as equatorial position। अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो सब्स्टिट्यूशन जो होता है, दे आर more stable on this axial position। ये सॉरी जो इक्वेटोरियल पोजीशन होता है, इस इक्वेटोरियल पोजीशन में पॉसिबली सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। सो the substitution is possible more on this equatorial position than that of the axis, okay। the axial hydrogen है, इस पे substitution is less possible than that of equatorial position। now the last topic of this chapter is flagpole hydrogen atoms। this is also very important short question। जो short questions होता है 1 मार्क का जो question आता है लास्ट में, या तो फिर आपका जो 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, दैट कुड बी अ सब क्वेश्चन। तो ये जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम है, दिस इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन विद 1 मार्क क्वेश्चन। तो इसमें एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो बोट कंफर्मेशन है, अगर हम देखते हैं ये बोट कंफर्मेशन है, तो ये जो हाइड्रोजन है दे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है, यू कैन सी दीज आर नियर टू ईच अदर। ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये जो हाइड्रोजन से ये दूर है ना, एक दूसरे से दूर है, बट ये जो हाइड्रोजन है दे आर क्लोजर टू ईच अदर। बिकॉज ऑफ दे आर क्लोजर, दे फॉर्म सम रिपल्शन, ये कुछ रिपल्शन एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर होता है दे आर लेस स्टेबल देन दैट ऑफ चेयर कन्फर्मेशन। ये जो कन्फर्मेशन होता है इसमें भी आप देखोगे कि कोई ट्विस्ट नहीं है, सीधा फॉर्म है, इट शुड बी ऑल्सो स्टेबल, बट सिर्फ इस फ्लैगपोल हाइड्रोजन के कारण ये स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी जो होती है ये कम हो जाती है। दिस इज लेस स्टेबल देन दैट ऑफ चेयर कन्फर्मेशन बिकॉज ऑफ दिस फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम। ये जो दोनों हाइड्रोजन एटम है which are near to each other, these hydrogen are called as flagpole hydrogen atoms, okay। so this is very simple concept। because of the flagpole hydrogens, this boat form is less stable than that of chair form।